Rethod and I have secured AIR 16 in GATE 2017 Computer Science branch. Today I will share with you all general tips which I followed during my preparation, and also I would like to give you a subject wise analysis of the difficult topics which I faced. So majorly the subjects in GATE or in computer science, they can be divided into 6 groups, and I have joined my coaching in 5th semester of my college, and Siddharth sir taught these subjects in a very systematic way. So apart from his notes which were common during the preparation, I followed for each of the subjects. I followed his notes and I studied them. Apart from the notes, I read the standard books in some of the subjects which I am going to tell you in detail right now. So the first group consists of the subjects C, programming, data structures, discrete mathematics and algorithm design. These subjects are not very huge and they can be completed in short period of time, within 2 or 3 months, within 1 or 2 months. So in C programming, recursion and static variable are some topics which are asked every year and they should be kept in mind while studying. In data structures, I followed Tannenbaum and Karumachi apart from notes. The difficult topic in data structure was AVL trees, and also one interesting topic which mostly people forget to study is the types of hashing. In algorithm design, I followed the book Corman. Initially it was quite, most people find it difficult because the examples and the language is not easy to grasp. But as and when we study the book Corman, it is a very good book. It is very detailed book about it has detailed description about the algorithms. One thing I would like to point out in ADA is shortest path and spanning tree algorithms. The description and explanation of these algorithms in book is a must read because it tells how the complexity changes with the data structures used in that algorithm. Okay. Now comes the subject discrete mathematics. The notes of this which were taught by sir and his notes are more than sufficient for this subject. Also, I read only predicate logic from this book. If you want to follow some book, you can follow any standard book, or if you are finding it difficult, you can follow a book by Indian author. Then the next group comes computer networks. इस सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और नोट्स के साथ साथ ये इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैंने इस बुक को फोरोजन, इसके लिए जो बुक फॉलो की वो थी फोरोजन. ये बुक काफ़ी अच्छी है और मतलब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो जल्दी समझ आ जाएंगे आपको. अगर आप ये बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी. नेक्स्ट एक TOC और CD को हम लोग एक ग्रुप में डाल सकते हैं. थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिज़ाइन, क्योंकि काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, इनको एक साथ CD और काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है वो जल्दी कवर हो जाता है. तो CD और TOC के लिए मैंने सर के सिर्फ नोट्स फॉलो किए हैं. साथ ही में CD के लिए मैंने बुक से, जो कि मॉरिस मैनो मैंने फॉलो की, उलमान आहू वाली बुक फॉलो की थी. CD के लिए मैंने बस बॉटम ऑफ पार्सिंग पढ़ा था बुक से और रन टाइम एनवायरनमेंट पढ़ा था. TOC के लिए मैंने सिर्फ सर के नोट्स रेफर किए थे और अनडिसाइडेबिलिटी की कुछ PDF ऑनलाइन एक्सेस मिल सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट ग्रुप है अपना कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बुक मैंने 11वीं पढ़ी थी और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना. एक बार कोचिंग में जो यहाँ जो टॉपिक कवर होता था उसके बाद मैं उसको बुक से पढ़ती थी, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में एक टॉपिक है पाइपलाइनिंग, जो काफ़ी पेक्यूलियर है, तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब में. डिजिटल लॉजिक में सीक्वेंशियल सर्किट और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़े मुझे टफ लगते थे टॉपिक, तो इसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर दिए और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए. ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन के काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं गेट में, तो ये टॉपिक के भी आप जितने क्वेश्चन जितने बार बुक से पढ़ोगे, जितने बार आप नोट्स पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. लास्ट बचता है हमारे लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसके लिए मैंने नवाथे बुक फॉलो की थी और इसके भी सारे टॉपिक्स मैंने बुक से पढ़े थे. और इसमें जो एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था वो था ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल. और एक पॉइंट मैं करना चाहूँगी, जो OS और DBMS में डेडलॉक है वो काफ़ी सिमिलर है.
तो अगर आपका एक में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप दूसरे सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स। स्टैंडर्ड बुक पढ़नी काफ़ी ज़रूरी है। CN OS DBMS के लिए तो आई वुड रिकमेंड इट इज़ अ मस्ट टू रीड द स्टैंडर्ड बुक्स फॉर क्रैकिंग गेट। नाउ आई वुड लाइक टू गिव सम जनरल टिप्स फॉर विच आई फॉलो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। when a test series, please join a test series। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है और लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है एंड दैट टू विथ फुल ऑनेस्टी। टेस्ट देते टाइम डोंट बी इन अ हरी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 गेट में एक बड़ी मेजर मिस्टेक ये की थी कि आई वॉज जस्ट स्विचिंग बिटवीन द क्वेश्चंस एंड आई वॉज इन अ हरी टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट in any competitive exam there must be an accuracy while solving, so be calm while you are solving the questions, and whenever you see a question you can identify a question can be identified within 3 categories. First, there are type of questions which can be solved easily and at that point of time. One, there are type of questions which can be solved but it would take time for you to solve them, and one which cannot be solved at all. So after giving a test you must analyze all your options, and जितना टाइम आप टेस्ट में देते हो उससे ज़्यादा टाइम आपको उस टेस्ट के एनालिसिस में देना चाहिए, क्योंकि आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको क्लियर है और कौन से टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेंटोर से जाके पूछ सकते हैं। मैंने सिद्धार्थ सर ने मुझे काफ़ी हेल्प की, क्योंकि टेस्ट के बाद मुझे जो भी मैंने एनालिसिस किया। तो एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि टेस्ट के बाद एक जैसे हम टेस्ट देते जाते हैं वी फाइंड अ पैटर्न इन आवर मिस्टेक्स, वी फाइंड दैट देयर आर सम टॉपिक्स इन विच वी कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चंस एट ऑल। सो if you are finding such a pattern, just take that topic, ask anyone to explain it or see a video lecture on it and then solve the question and read the book for that topic. Also, one thing to be kept in mind is one major point is solve previous year gate questions। मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के गेट क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेट में क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते। मे बी दे कैन बी सिमिलर टू प्रीवियस ईयर्स बट दे आर नेवर रिपीटेड। ओके, टेस्ट आर मस्ट एज आई सेड अर्लियर एंड कंप्लीट ऑल योर सब्जेक्ट्स टिल दिसंबर। जैसे फरवरी में गेट एग्जाम होती है तो आप मिड दिसंबर तक ट्राई कीजिए कि सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाए, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। हाँ, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैं बोलना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मैंने लास्ट ईयर के सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मेरे जो कंप्यूटर साइंस में टॉपिक्स थे उसके। ऑल्सो LU डिकम्पोजिशन एंड प्रोबेबिलिटी को मैंने BS ग्रेवाल से पढ़ा था। एंड या सो बेस्ट ऑफ लक, कीप मोटिवेटेड। डीमोटिवेशन आएगा ही, दिस इज अ मस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देयर मस्ट बी अ पॉइंट यू विल बी डीमोटिवेटेड, बट डू नॉट स्टॉप देयर। अपनी तैयारी आपको रोकना नहीं है। थोड़े उस 1 घंटे के लिए आप स्टॉप कर सकते हो, बट देन यू नीड टू कंटिन्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू।